آج ویو 360 میں پاکستان کی افغان طالبان پر پابندیوں کے بعد ملاقات ہے۔ اسلام آباد کی حکمت عملی ہے کیا؟ کرونا وائرس سے بچاؤ کی حکمت عملی پر تنقید کے باوجود معاشی بحالی کے لیے صدر ٹرمپ میں ووٹروں کا بھروسہ قائم۔ میں اگر پرسنلی بولوں تو دماغ بہت ڈسٹرب اور ڈپریشن میں رہتا ہے۔ اور بھارتی زیر انتظام کشمیر میں 1 سال سے تعلیمی ادارے بند، طلباء نفسیاتی دباؤ کا شکار۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان آئے افغان طالبان کے وفد کی اسلام آباد میں اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کو کابل اور واشنگٹن میں غور سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس دورے میں طالبان کی اعلیٰ قیادت نے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقات کی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق افغانستان کی سیاسی صورتحال اور بین الافغان مذاکرات پر تبادلہ خیال ہوا اور پاکستان نے افغان امن عمل کو سبوتاژ کرنے والے عناصر کے بارے میں بھی طالبان کو آگاہ کیا۔ لیکن یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب پاکستان نے حال ہی میں طالبان پر اقوام متحدہ کی جانب سے لاگو پابندیاں عائد کرنے کی توثیق کی ہے اور FATF کی شرائط کو پورا کرنے کی سمت میں قدم اٹھایا ہے۔ اس پس منظر میں پاکستان، افغان حکومت اور طالبان اس وقت ایک دوسرے پر کس حد تک بھروسہ کر سکتے ہیں، اس بارے میں میری کچھ دیر پہلے بات ہوئی پاک افغان خطے کے لیے امریکہ کے سابق نمائندہ خصوصی رچرڈ آلسن سے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کی پالیسی میں تضاد نہیں ہے بلکہ وہ اپنے 2 مختلف مقاصد کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ طالبان کے خلاف پاکستان کی اعلان کردہ پابندیوں کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کے پیچھے پاکستان کی فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی ممکنہ پابندیوں سے بچنے کی مربوط اور سنجیدہ کوششیں ہیں۔ میرے خیال سے پاکستان کے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے یہ لازمی ہو چکا تھا اور پاکستان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ تو میرا نہیں خیال کہ طالبان کے حوالے سے یہ پاکستان کی کوئی شعوری حکمت عملی تھی بلکہ یہ پاکستان کے قومی مفاد کا سوال تھا۔ ایمبیسڈر، ایک طرف تو پاکستان افغان طالبان پر پابندیاں لگا رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان کے طالبان کے ساتھ تعلقات، اس میں اسلام آباد کی کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیے، اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کا طالبان کے ساتھ دیرینہ تعلق رہا ہے اور یہ کہ امریکہ اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی رہا ہے۔ لیکن اب میرے خیال سے پاکستان اور امریکہ کے مقاصد میں کچھ حد تک ایک ہم آہنگی پیدا ہوتی دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ دونوں ہی قیام امن کے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ملا برادر اور طالبان پولیٹیکل کمیشن کے حالیہ دوروں سمیت پاکستان کی اوور آل پالیسی کی تشریح بھی میں اسی طرح سے کروں گا۔ اس ملاقات سے پہلے پاکستان کے محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ طالبان کے ساتھ ملاقات کا مقصد ان پر افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے زور ڈالنا ہے۔ یہ ایک اہم پیغام ہے کیونکہ طالبان کو تو بہت عرصہ پہلے مذاکرات کی میز پر آ جانا چاہیے تھا لیکن ان کے زیادہ تر مطالبات پورے ہو چکے ہیں۔ امریکی افواج کے انخلاء کا ٹائم ٹیبل دیا جا چکا ہے اور ان کے مطالبے پر زیادہ تر طالبان قیدی بھی رہا کیے جا چکے ہیں اور یہ وہ پیغام ہے جو پاکستان انہیں دے رہا ہے۔ قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر انٹرا افغان مذاکرات شروع نہیں ہو پا رہے۔ کچھ قیدیوں کی رہائی پہ تحفظات ہیں آسٹریلیا اور فرانس کو۔ اب یہ مسئلہ آگے چل کر کیسے حل ہوگا؟ اس کے لیے دوحہ معاہدے کی یاد دہانی ضروری ہے جو 29 فروری کو طے پایا تھا۔ اس کے مطابق امریکہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ 5000 تک قیدیوں کی رہائی کے لیے کام کرے گا۔ یہ تعداد 5000 نہیں بلکہ 5000 تک ہے اور میرے حساب سے اب تک 4680 کو رہا کیا جا چکا ہے۔ یہ تعداد 5000 کے بہت قریب ہے۔ بقیہ کچھ قیدیوں کے بارے میں کچھ ممالک نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کیونکہ متعلقہ طالبان قیدیوں کے ہاتھ ان ممالک کے شہریوں کے خون سے رنگے ہیں۔ اب میرے خیال سے طالبان کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ افغان حکومت نے اعتماد سازی کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے ہیں اور انہیں مذاکرات کے لیے میز پر آنا چاہیے۔ ایمبیسڈر، طالبان کے نمائندوں کی طرف سے پاکستان کے اس دورے کا کابل اور اسلام آباد کے تعلقات پر کیا فرق پڑ سکتا ہے؟
Well, I think that this is, as I say, there's a greater degree of alignment now. मेरा ख्याल है कि गुज़श्ता कई सालों के मुकाबले में अब पॉलिसीज़ और मफादात में ज़्यादा हम आहंगी है। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से अब इत्तफ़ाक़ राय है। हुकूमत पाकिस्तान अमन अमल को सपोर्ट देने और उसके लिए तालिबान पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करने के लिए पुरअज़्म है, और ये मकासद अमरीकी मकासद से हम आहंग हैं, लिहाजा मफादात में हम आहंगी है। इसको जारी रखते हुए अब अमन अमल को इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की ज़रूरत है। और अब कुछ बात अमेरिका में जारी इंतखाबी सरगर्मियों की। अगरचे रायामा के जायज़ों में कोरोना वायरस और नस्ल की बुनियाद पर नाइंसाफियों को दूर करने के मामलात में सदर ट्रंप अपने हरीफ जो बाइडन से पीछे नजर आते हैं, लेकिन मईशत एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में लोग उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इन दिनों रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन कोरोना वायरस के बाइस बड़ी हद तक वर्चुअल हो रहा है। रियासत नॉर्थ कैरोलिना के शहर शार्लेट में जहां अब कन्वेंशन की सिर्फ महदूद सरगर्मियां ही जारी हैं, लोग मुआशी तरक्की बहाल करने में सदर ट्रंप की सलाहियत पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। कोरोना वबा और अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान सदर ट्रंप अपने डेमोक्रेटिक हरीफ जो बाइडन के मुआशी नुक्ते नज़र को रद्द करते हुए मईशत की बहाली के अपने वादों पर तवज्जो देते आए हैं। Biden the other day said no, he'd shut it down. बाइडन ने उस दिन कहा कि नहीं, वो इसे बंद करेंगे। हमने रोजगार के हवाले से सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे कोई 3 माह नहीं गुजरे जब हमने ज्यादा लोगों को काम पर ना लगाया हो, 90 लाख से ज्यादा अफराद, और एक बार फिर हम स्टॉक मार्केट का पिछला रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है। Break the all-time stock market record. I mean, you look at it, we're just about ready to... सदर ट्रंप को बाकायदा तौर पर रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार नामजद करने वाले डेलीगेट्स या पार्टी मंदूबीन का कहना है कि उन्हें एतमाद है कि वो अमरीकी मईशत को तरक्की देंगे। Before the pandemic hit, the economy was incredible. कोविड से पहले मईशत नाकाबिल यकीन हद तक मजबूत थी। आप जानते हैं हमारे यहाँ बेरोजगारी की सतह में रिकॉर्ड कमी थी। स्टॉक मार्केट हर रोज रिकॉर्ड बना रही थी। हर जगह मईशत वाकई मजबूत है। ये वबा सिर्फ आर्जी है, ये आखिरकार खत्म होने वाली है और कारोबार दोबारा शुरू होने वाले हैं। तो सवाल ये है कि मईशत की तामीर नौ का तजुर्बा किसके पास है? वो मंदूबीन भी जो समाजी फासले की वजह से कन्वेंशन में शिरकत से कासिर हैं, मौजूदा बेरोजगारी की जिम्मेदारी सदर पर नहीं डालते। मुझे नहीं लगता कि लोग कोविड के बाइस शटडाउन पर सदर को ही मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं। शिमाली कैरोलिना के शहर शार्लेट में मेहमान नवाजी की सनत में कुछ कारोबारी मालकान जो रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन से हासिल होने वाली आमदनी पर इन्हिसार कर रहे थे, उनका कहना है कि उन्हें सदर ट्रंप की मईशत को बहाल करने की सलाहियत पर अब भी यकीन है। मुझे लगता है कि मईशत बहुत अच्छे अंदाज में चल रही है। मैं समझता हूँ कि हम अभी माशी नुक्ता नज़र से एक अच्छी जगह पर हैं। मुझे सदर ट्रंप की इक़्तिसादी पॉलिसियाँ पसंद हैं। मेरे ख्याल में अगर सदर ट्रंप ट्वीट्स कम कर दें तो उन्होंने पिछले 1.5 माह में उम्दा काम किए हैं। And which I think he's done a fantastic job over the last month and a half. लेकिन होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफेज में काम करने वालों को कोविड ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। इन बिजनेसेस में काम करने वाले 1/4 से ज्यादा बेरोजगार हुए हैं। ये अमेरिका में कुल बेरोजगार होने वालों का तकरीबन 1/3 है। Well, I think the only way I personally feel that we can... मैं ज़ाती तौर पर यह महसूस करता हूँ कि हम इस वबा का खात्मा करके मईशत को बहाल कर सकते हैं। बहसीयत कौम हमें यह फैसला करना होगा कि हमें यह काम पहले करना है। We have to do that first. सदर ट्रंप अमरीकी अवाम के सामने अपना नुक्ता नजर पेश करते रहेंगे क्योंकि ये वर्चुअल कन्वेंशन हफ्ता भर जारी रहेगा। ईशा सराय की रिपोर्ट के साथ नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर।
रिपब्लिकन पार्टी वैसे तो कदामत पसंद नजरियात की हामी है, मगर तारीखी एतबार से इसकी नजरियाती समत का इन्हिसार इस बात पर भी रहा है कि पार्टी की क़यादत कर कौन रहा है और मुल्क किन हालात से गुजर रहा है। आइए एक नजर डालते हैं रिपब्लिकन पार्टी की दिलचस्प तारीख पर। रिपब्लिकन पार्टी वफाक में छोटी हुकूमत और कदामत पसंद समाजी पॉलिसियों की हिमायत के लिए जानी जाती है, मगर ये जमात हमेशा ऐसी नहीं थी। अमेरिका की शिमाली रियासतों से ताल्लुक रखने वालों ने 1854 में इस पार्टी की बुनियाद रखी। ये अफराद मगरबी रियासतों में गुलामी को फैलाने के खिलाफ एक मजबूत वफाकी हुकूमत चाहते थे। सन 1860 में पार्टी के दूसरे ही उम्मीदवार अब्राहम लिंकन मुल्क के सदर बने और गुलामी को खत्म किया। खाना जंगी में शिमाली रियासतों की फतह के बाद रिपब्लिकन पार्टी आइंदा 70 बरस तक मुल्क की सियासत पर हावी रही। इसी दौरान पार्टी ने वफाकी हुकूमत के इख्तियारात को वसअत देने पर जोर दिया और पार्टी रहनुमाओं ने आइन में 15वीं तरमीम के जरिए स्याह फाम अमरीकी मर्दों के लिए वोट के हक की हिमायत भी की। मुल्क में बदतरीन माशी बदहाली या ग्रेट डिप्रेशन के बाद जब डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन्स को हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया तो सियासत पर इस पार्टी का गलबा खत्म हुआ। आइंदा निस्फ सदी तक ज्यादातर डेमोक्रेट्स ने कौमी सतह पर कंट्रोल जमाए रखा। इस अरसे में सिर्फ एक मरतबा रिपब्लिकन सदर इख्तियार हासिल कर पाए। डेमोक्रेट्स की जानिब से ग्रेट डिप्रेशन के दौरान वफाकी हुकूमत के इख्तियारात के फैलाव के जवाब में रिपब्लिकन पार्टी ने कदामत पसंद नजरियात अपनाए। दोनों जमातों की पॉलिसियों में तब्दीली के बाइस उनके हामी गिरोहों में भी तब्दीली हुई। बहुत से स्याह फाम अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गए, जबकि मुल्क की जनूबी रियासतों में बेशतर सफेद फाम अमरीकी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ रागिब होते गए। 1980 की दहाई में अपनी पॉलिसियों की वजह से सदर रोनाल्ड रेगन ने मुल्क की अक्सरियत में कामयाबी हासिल की। हालिया कुछ तिहाइयों में दोनों सियासी जमातों के सुदूर बारी बारी इख्तिदार में आते रहे हैं। रिपब्लिकन सुदूर जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डोनाल्ड ट्रंप वफाकी हुकूमत के निस्बतन कम किरदार और समाजी पॉलिसियों में ज्यादा दाएं बाजू के नजरियात के हामी हैं। अमरीकी इंतखाबात के अलावा दुनिया भर की अहम खबरों और पाकिस्तान में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स पर नजर रखने के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa और फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/voa urdu। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पहले सियासी वजूहात की बुनियाद पर आयद की जाने वाली बंदिशों और फिर कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन की वजह से तालीमी इदारे पिछले 1 साल से बंद पड़े हैं। नतीजतन तालिब इल्मों की सरगर्मियां धर्म भरम हो गई हैं। तलबा को डर है कि वो भारत में कौमी सतह के इम्तिहानात में दूसरी रियासतों के तालिब इल्मों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, जबकि माहिरीन नफ्सियात को तशवीश है कि यह सूरत हाल नौजवानों की ज़हनी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। श्रीनगर से जुबैर डार की रिपोर्ट। मोहसिन अली श्रीनगर के एक स्कूल में 11वीं जमात के तालिब इल्म हैं, लेकिन 1 साल से स्कूल नहीं गए क्योंकि स्कूल बंद पड़ा है। वो घर पर पढ़ाई तो करते हैं, मगर ये इनके लिए क्लासरूम का मुतबादिल नहीं। इन्हें डर है कि वो भारत के दूसरी रियासतों के तलबा से बहुत पीछे रह गए हैं। जो ज़्यादा इफेक्ट कश्मीरी स्टूडेंट्स पे पड़ा है, क्योंकि जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के साथ कूप अप नहीं कर पाएंगे। फिर लास्ट में हमारी लाइफ ड्रास्टिकली बहुत चेंज हो गई है स्टूडेंट्स की लाइफ। जो लॉकडाउन से पहले जो हमारी एक्टिविटी थी, हम सुबह उठते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल में हम जो टीचर्स पढ़ाते थे वो घर आके रिवाइज करते थे, वो सारा जो एक्टिविटी है, जो रूटीन थी हमारी, वो सारी बिगड़ गई इस लॉकडाउन की वजह से। मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो दिमाग बहुत डिस्टर्ब और डिप्रेशन में रहता है। माहिरीन तालीम और नफ्सियात मोहसिन अली की इस परेशानी को बेजा नहीं समझते। वो कहते हैं कि तालीमी इदारों के तवील अरसे से बंद रहने से न सिर्फ तालिब इल्मों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है, बल्कि इनमें नफ्सियाती पेचीदगियां भी पैदा हो रही हैं। वो हमारे पास अक्सर पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, टीचर्स के फ़ोन आते हैं कि एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है, बिहेवियरल प्रॉब्लम है, बच्चे नॉर्मली अब बिहेव नहीं कर पा रहे हैं। इन हालात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है, तो बच्चों में कन्फ्यूजन है, स्ट्रेस है, काफ़ी डिसऑर्डर्स पैदा हो रहे हैं और हमें ये डर है कि पता नहीं कि नेगेटिव जो ये डेवलपमेंट हो रही है पर्सनैलिटी की, ये कहाँ पे हमारे बच्चे कहाँ लैंड कर पाएंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। हुकूमत भारत ने अंदिया दिया है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र स्कूलों को इस साल के आखिर तक बंद रखना पड़ सकता है। इस दौरान यहाँ श्रीनगर में कायम चाइल्ड वेलबींग सेंटर में मेंटल हेल्थ के 124 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि तकरीबन 800 बच्चे उनसे जहनी सेहत के हवाले से फ़ोन पर मशवरा ले चुके हैं। माहिर नफ्सियात खबरदार करते हैं कि अगर इस सूरत हाल पर जल्द काबू न पाया जाता तो तालिब इल्मों में नजर आने वाला जहनी दबाव डिप्रेशन और मजीद संजीदा अमराज में बदल सकता है। फॉर डोमेस्टिक वायलेंस जो रिपोर्ट की है, देयर इज 72% इंक्रीज
इन फैमिलीज़। तो जब माँ बाप की भी जो जहनी सेहत है वो ठीक नहीं रही है तो बच्चों पर भी डबल असर उसका पड़ेगा। तो जब उनको अपना जो डेली रूटीन से उनसे हटाया जाए कि बाहर न जाना, ऐसे खेलना नहीं है, इम्पोर्टेंटली खेल कूद बंद हो गया, तो उनका नेगेटिव इफेक्ट उन पर रहा है कि अगर अनकंट्रोल्ड रहा तो जो आज का मामूली स्ट्रेस है बच्चों को, कल वो डिप्रेशन में चेंज हो सकता है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में काम करने वाले कई मकामी और बैनुल अक़वामी सरकारी तंजीमों का कहना है कि वो अब अपनी सर्विसेज का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। There's a two aspect of mental health. One is curative and one is preventive. So definitely we are working on the preventive part, not a curative part. So curative part जो है हमारे पास 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है वो curative part पे, जो अभी जो मुझे लग रहा है कि Save the Children now need to work in even for curative part also. But क्योंकि अभी हमारा परसेंटेज और ये बहुत ज़्यादा है और एरिया बहुत ज़्यादा है, तो अभी मतलब ऐसा जेन के Save the Children feel that we should work on mental health. ताहम जम्मू कश्मीर के हालात पर नजर रखने वाले बाज तजिया निगारों का कहना है कि इलाके में बरसों से जारी बदअमनी और गैर यकीनी नौजवान नस्ल पर गालिब आ चुकी है और इन्हें तेजी के साथ निगल रही है। इतना लगता है कोई रास्ता नहीं है तो सुसाइडल मोड बन जाता है। सुसाइडल में अब मिलिटेंसी है, उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी जाते हैं। तो हम देखते हैं आए दिन यहाँ बच्चे मरते हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक साल से स्कूलों और कॉलेजों के तकरीबन 26 लाख तालिब इल्म क्लासरूम से दूर हैं। ज़ुबैर अहमद डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। शुक्रिया 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 कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का, शुक्रिया पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रजाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का, शुक्रिया हुकूमती एहलकारों का, सहाफियों का और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत की बंदरगाह पर होने वाले धमाके ने जहां मकामी अफराद की जिंदगियों को मुतासिर किया, वहीं ऐसे बहुत से लोगों को भी एक नई मुश्किल में डाल दिया है जो बेहतर जिंदगी की तलाश में लबनान आए थे। बैरूत में मुकीम शामी पनाहगज़ीन कहते हैं कि ऐसी तबाही उन्होंने जंग में भी नहीं देखी, जबकि लबनान में काम करने वाले लाखों गैर मुल्की घरेलू मुलाजिमीन जो इस हादसे में अपनी नौकरियां और रिहाइश खो चुके हैं वापस जाना चाहते हैं, लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से फंस कर रह गए हैं। ये शाम से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद सतीफ़ी हैं, जो अपनी बीवी और 2 बच्चियों को शाम में जंग की तबाहकारियों से बचाकर बैरूत के करंटीना नामी इलाके में आबाद हुए थे, लेकिन वो अपने अहले खाना को बैरूत की बंदरगाह के धमाके की तबाहकारी से ना बचा सके, जो महज चंद सेकंडों में लुक़मा अजल बन गए। उनका घर मलबे का ढेर बन चुका है, जिसमें दबी यादें उनके लिए दर्दनाक दास्तानें हैं। मेरा खानदान 2014 में जंग से फरार होकर यहाँ आया और यहाँ किराए पर एक घर लिया। धमाके के वक्त मैं यहाँ मौजूद नहीं था, कहीं बहुत दूर था। शाम 6 बजे के करीब धमाके की आवाज आई और धुआं उठने लगा। मैंने खुद को ढांपा, घर पहुँचा तो देखा कि मेरी बेटी दीवार से टकराकर मर चुकी थी। धमाके के वक्त हम सब यहाँ बाहर बैठे हुए थे, ये खुदा का करना था, वरना हम सब मर जाते। शाम ही से ताल्लुक़ रखने वाले उदय कतान भी इस मोहल्ले के रिहायशी हैं, लेकिन वो और उनके रिश्तेदार इस धमाके में महफूज रहे। उन्होंने इस वाक़े की कुछ तस्वीर संभाल रखी हैं, लेकिन उन्हें देखना किसी अज़ियत से कम नहीं। ये फ्रिज और सब कुछ हम पर गिर गया, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम बच गए। आपने तस्वीरें देखी है ना? ये इलाका एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है, जहाँ उदय और उनके रिश्तेदार मलबे के ढेरों के सामने अपने रोजमर्रा मामूलात में मसरूफ नजर आते हैं। इस धमाके के बाद लबनान में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले उन लाखों घरेलू मुलाजमीन को खास कर एक और बहरान का सामना है, जिनकी मुलाजमतें और मुआवजे पहले ही लबनान की खराब मईशत के बाइस खतरे में थे। इनमें से बहुत से अपनी रिहाइश और मुलाजिमतों से हाथ धो बैठने के बाद अब अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। इस मकसद के लिए वो लबनान में अपने कौंसिल खानों के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। हम तमाम हुकूमतों से अपील करते हैं कि वो लबनान से इन अफराद के इनखला के लिए न सिर्फ ठोस इक़दाम करें, बल्कि दस्तावेज़ात के बगैर अफराद को बिला मशरूत उनके मुल्क वापस भेजने का इंतजाम भी करें, उनकी जानें बचाने के लिए। ताहम लबनान में काम की गर्ज से दाखिल होने के लिए राइज मुतनाज़े कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम के तहत ये तारिकीन वतन अपने आजिर की इजाज़त के बगैर किसी सूरत भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते।
کیونکہ ایسا کرنے سے لبنان میں ان کی قانونی حیثیت ختم کی جا سکتی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس قانون کو غیر انسانی قرار دیتی ہیں۔ بیروت دھماکے نے معاشی مشکلات اور سیاسی انتشار کے شکار اس ملک کے مسائل میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اس سے متاثرہ افراد اپنے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی کا شکار نظر آتے ہیں۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ چین میں آباد کئی ویگر مسلمانوں نے حکومتی کریک ڈاؤن سے بھاگ کر ترکی میں پناہ لے رکھی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ چین کی حکومت کے قائم کردہ اصلاحی مراکز میں رہنے والے ویگر مسلمانوں کی حالت حراستی کیمپوں میں رہنے والوں جیسی ہے۔ چین اب ویگروں کی جانب سے تنقید کو دبانے کے لیے ترکی پر دباؤ بڑھا رہا ہے، جس کے باعث ویگر پناہ گزین ترکی میں بھی اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں۔ ترکی میں ایک حالیہ مظاہرے کے دوران ویگر کمیونٹی کے سرگرم کارکنوں نے شکوہ کیا کہ وہ وہاں بھی چین کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے ترک پولیس نے ان کارکنوں کو گرفتار کر لیا تھا جنہوں نے اپنے خاندان کے ان افراد کی تصویروں والی ٹی شرٹس پہن رکھی تھی جنہیں چینی حکام نے حراست میں رکھا ہوا ہے۔ پولیس نے کہا کہ اب تم جا سکتے ہو لیکن ان ٹی شرٹس کے ساتھ نہیں۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ افسر نے کہا کہ تم نہیں پہن سکتے، تمہیں انہیں الٹا کر کے پہننا ہوگا۔ ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم یہ قمیض الٹی کر کے پہنے، جس سے نہ صرف ہماری بلکہ ہماری ماؤں اور بھائیوں کی بھی عزت نفس مجروح ہوئی۔ ترکی ان ممالک میں سے ہے جہاں بڑی تعداد میں ویگر مسلمانوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ ان کی اکثریت استنبول میں مقیم ہے۔ عبدالرحیم امین فراج 7 برس پہلے استنبول آئے تھے۔ ان کی اہلیہ چین کے ایک حراستی مرکز میں ہیں۔ عبدالرحیم کو خطرہ ہے کہ چین پر تنقید کر کے وہ اب ترک حکام کا ہدف بن گئے ہیں۔ پولیس نے مجھے ایک ریسٹورانٹ میں بند رکھا اور پھر مجھے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ انہوں نے مجھے ایک دستاویز پر دستخط کرنے کو کہا۔ اس میں لکھا تھا کہ یہ شخص ایسی تنظیموں سے تعلق رکھتا ہے جو ترکی کے لیے خطرہ ہیں۔ میں نے کہا میرا ان گروہوں سے کوئی تعلق نہیں اور میں اس پر دستخط نہیں کروں گا۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے وکیل ابراہیم ایرجن کا کہنا ہے کہ عبدالرحیم جیسے کیس عام بات ہیں۔ لوگوں کو بغیر ثبوت کے غیر ملکی دہشت گرد یا جنگجو ہونے کے الزامات میں حراست میں رکھا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ چین ترک وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور سیکیورٹی فورسز پر زبردست دباؤ ڈال رہا ہے۔ ان حکام سے ہماری بات چیت کے دوران ہمیں بتایا گیا تھا کہ 5 سے 10 ویغور مسلمانوں کو چین کے حوالے کرنے سے ترکی کو معاشی اور سیاسی فائدہ حاصل ہوگا۔ سابق ترک وزیر اعظم احمد داوتوگلو اردوان حکومت پر ویگر مسلمانوں کی قربانی کے بدلے چین کے ساتھ معاشی تعلقات مضبوط بنانے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ صدر اردوان نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی نے لاکھوں افراد کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ جیسے جیسے ویگر افراد پر چین کے جبر کی خبریں باہر آ رہی ہیں، ترک لیڈر عالمی سطح پر چین کی مذمت سے اپنے آپ کو باز رکھے ہوئے ہیں۔ اس خاموشی سے عبدالرحیم جیسے ویگر اضطراب کا شکار ہو رہے ہیں۔ حکام نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور اس خاموشی کی وجہ سے میں خوفزدہ ہوں۔ میں اپنے مستقبل کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، اگر کروں تو ڈراؤنے خیالات میں پریشان ہو جاتا ہوں کیونکہ میرا مستقبل ایک انجانے اندھیرے میں ہے۔ عبدالرحیم فی الحال اپنی شاعری میں ہی سکون تلاش کر رہے ہیں۔ انہیں برسوں سے اپنے اہل خانہ کی کوئی خبر نہیں آئی اور بہت سے ویگر افراد کی طرح انہیں بھی مستقبل سے کوئی زیادہ امید نہیں ہے۔ ڈورین جونز کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور آپ ہمیں اس پروگرام کے بارے میں آگاہ کر سکتے ہیں اپنے فیڈ بیک سے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔